We are doing perquisites in salary. Now, in perquisites in salary, we are specifically studying today perquisites which are taxed for a specified employee. We saw what is a specified employee. A specified employee is an employee who is a director of a company, or he is holding 20% or more stake in the company, or he is earning 50,000 or more salary in the entire year per annum. In that case, these particular perquisites will be taxed in the hands of the employee. That is a car facility, services of domestic servants, gardeners, personal attendants, gas, water and electricity facility, education facility, transport facility and medical facility. Okay. Now, what does this mean? Now let's see. This gives you an entire perspective of how these perquisites are going to be taxed for specified employees. Free domestic servant at employee's home. Now in this case, what is the meaning of free domestic servant at employee's home? मतलब वो सर्वेंट आ रहा है, वो गार्डनर आ रहा है, काम करके जा रहा है और तुम्हें कुछ नहीं करना है. Okay, like lot of these judges of the High Court, Supreme Court get this. Lot of government servants at higher post get it. So they have lot of people under them who are doing this kind of work. So they don't have to pay them, they get paid. The salaries of the servants, of the gardeners are paid by the government. Now, as opposed to if there is a reimbursement of a salary of the servant. Now understand what is the meaning of reimbursement. I am paying the salary to my maid, and let's say the maid salary or the gardener salary, watchman salary is 10,000. That 10,000 rupees I then claim a reimbursement. तो मुझे 10,000 at the end of the month वापस मिल जाता है. That will not be counted as a perquisite. That will be counted as a perquisite and it will be taxed. Okay. In this case, अगर तुमको सर्वेंट मिल रहा है और वो सर्वेंट के लिए या वो हेल्पर के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, तुम सिर्फ बेनिफिट ले रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा. सिर्फ अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो टैक्स होगा. ओके, अंडरस्टैंड दिस. इफ यू आर गेटिंग अ रीइंबर्समेंट, चाहे तुम स्पेसिफाइड हो या नॉट स्पेसिफाइड हो, तुम्हारे हाथ में टैक्स होगा. रीइंबर्समेंट इज मनी यू आर गेटिंग. Okay, it will be taxed for everyone. But if you are actually getting a facility, then it will be taxed only for a specified employee. Okay, let me repeat myself once again. If you get a service, that is someone like a gardener, watchman, sweeper is coming, doing the work and going, you don't have to bother about his salary. You will be taxed only if you are a specified employee. If you are not a specified employee, you won't be taxed. Okay, but if you are getting a reimbursement, you will be taxed irrespective, चाहे specified हो या non-specified हो. Okay, similarly goes for gas facility, electricity, etc. Now same thing, reimbursement मिला, मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा 10,000 आया ये महीने, मैंने क्लेम कर लिया बॉस के पास से, एम्प्लॉयर के पास से, तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ही. ओके, irrespective चाहे specified हो या non-specified हो. But if I am a non-specified employee and I am getting free electricity, आते ही जा रहा है, okay, रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी आते जा रहा है, मुझे बिल आ ही नहीं रहा है. In that case, if I am a specified employee, it will be taxed in my hand. But if I am not a specified employee, okay, I am not a director, I am not holding 20% or more shares of voting power, or I am not earning 50,000 or more per annum, in that case, वो इलेक्ट्रिसिटी आते जाएगा. आई विल एंजॉय इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, sweeper, helper, watchman, etc. and I don't have to pay 1 rupee also. But if I'm a specified employee, I'll have to pay it. But if I get a reimbursement मैंने बिल भरा और फिर वापस मुझे पैसा मिल गया, ये तो कैश हुआ ना. कैश के ऊपर टैक्स है सबके लिए, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉई चिल्ड्रन. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थर्ड वन इन पर्टिकुलर. Okay, let's say you're working in Reliance. If you're working in Reliance and your children are going to Ambani International School,
अगर वो अंबानी स्कूल में गए और अंबानी स्कूल की फीस है ना 900 रुपीज़ है, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट गेटिंग अ रीइंबर्समेंट. यू डोंट हैव टू पे द 900 रुपीज़. वाई? बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ रिलायंस. इन दैट केस, okay, if you are a specified employee, it will be taxed to you. If you are not a specified employee, it will not be taxed to you. Now they are saying अगर तुम अंबानी स्कूल में गए, okay, let's take this example. अगर अंबानी स्कूल में गए और स्कूल की फीस okay is 900 per month. okay, अगर 900 per month है और तुम नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो, पहले नॉन स्पेसिफाइड देखते हैं. विल इट बी टैक्स्ड? विल इट बी टैक्स्ड? यस, नो? इट विल नॉट बी टैक्स्ड. ओके, नाउ अनदर सेम थिंग. अगर तुम अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हो and you are a specified employee, मतलब your children are going, and let's say the fees is 1200 rupees. They are saying that if the school fees, sorry, first let's take the example of 900. 900 है तो तुमको कोई टैक्स नहीं भरना है, नो टैक्स. ओके, कोई टैक्स नहीं भरना है. वाई? बिकॉज दे आर सेइंग अप टू 1000 रुपीज़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. ओके, लेकिन अगर यही फीस अगर 1900 होता तो इट वुड बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. इट वुड बी टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. अगर ये अंबानी स्कूल में जा रहे हो और फीस इज 1900 पर मंथ, ओके, एंड यू आर अ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, इट विल नॉट बी टैक्स्ड. If you are a specified employee, it is more than 1000, the fees is more than 1000, then it will be taxed. And how much amount will be taxed? Full 900 will be taxed and not just full 1900 will be taxed and not just 900. So again, अगर तुम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और स्कूल की फीस 1000 रुपये के ऊपर है और तुम्हें 1 रुपये नहीं भरना है, तुम्हें 1 रुपया नहीं भरना है, तुम्हारे लिए फ्री फैसिलिटी है, in that case the entire school fees will be taxed in the hands of a specified employee. Entire school fees will be taxed in the hands of a specified employee. Now let's take same thing. Okay, I'm still here. अंबानी स्कूल की बात कर रहे हैं हम, and we are talking about specified employee. Okay, we'll just call it स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, स्कूल की फीस है 1500. ओके, अब अंबानी क्या बोलता है कि एक काम करो, तुम 500 रुपया पे करो, तुम्हारे लिए कंसेशन है, तुम 500 रुपये पे करो. 1000 रुपया क्या होगा, तुम्हारे लिए स्कूल फीस नहीं होगा. यू विल नॉट हैव टू पे 1000 रुपीज़. सो नाउ हाउ मच बेनिफिट ही इज गेटिंग? 1000 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि 1500 की फीस है, तुमको सिर्फ 500 भरना है, तो 1000 का बेनिफिट हो गया. अब ये सेक्शन क्या बोलता है परक्विजिट का कि 1000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो ही टैक्सेबल है. ये 1000 रुपये से ज़्यादा है नहीं, बेनिफिट तो सिर्फ 1000 का है ना. सिंस इट इज़ नॉट मोर देन 1000 रुपीज़, hence it will be not taxed in the hands of specified employee. It will not be taxed in the hands of specified employee. Okay, why? Because the benefit is how much? 1000 तक बेनिफिट चलेगा. ओके, कोई बात नहीं. 1000 से ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम है. लेट्स से स्कूल की फीस 7500 है. ओके, तो तुमको बेनिफिट कितने का हुआ? 7000 का बेनिफिट हो गया. किसको? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को. पूरा अमाउंट टैक्स होगा. कितना अमाउंट टैक्स होगा? पूरा बेनिफिट का अमाउंट विल बी टैक्स्ड. द एंटायर अमाउंट ऑफ बेनिफिट विल बी टैक्स्ड. गॉट इट? एक बार आराम से देखो, ये स्कूल फीस का पार्ट नोट्स में भी दिया है. नेक्स्ट वाला देखो, यूज़ ऑफ मोटर कार. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. यूज़ ऑफ मोटर कार, तुमको गाड़ी दे दी है, अगर गाड़ी दी है तो फिर हम उसको टैक्स करेंगे. वैल्यू ऑफ द कार, like how we found the value of a house, we will find the value of the car and we will tax it. But if it is reimbursement of motor expenses,
बॉस रीइम्बर्समेंट मतलब मैंने अगर कार ली है, ओके, आई हैव टेकन अ कार एंड नाउ आई एम ड्राइविंग द कार, यू हैव टू पे द रेंट ऑफ द कार, or I'm enjoying the car, it is my car, and the employer is just giving me like a Zoom car I have taken and I have paid 10,000 per month, you're giving me a reimbursement. रीइम्बर्समेंट की बात नहीं हो रही है, रीइम्बर्समेंट हमेशा टैक्सेबल है, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो, सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड ऑन दिस, दिस इज ऑलवेज टैक्सेबल. We are concerned with when a motor car is given, then we will have to study in detail how to tax, how to find the value, and then how to add it to my salary. Okay, now this is for an employee family. If there is any, we'll study this when it is transportation is given. Okay, vacation के लिए जा रहे हो, recreational, private journey means when you're having your own free time and you're going for a holiday vacation and any amount is paid by the employer for you to go and enjoy, then in that case if you're a specified employee it will be taxed. If you're not a specified employee, it won't be taxed. So if my boss says that go with your family to Dubai for a vacation, I'm buying you the tickets, I'm not a specified employee, मेरे हाथ में tax नहीं होगा. But if I am a director of the company, okay, and I only am taking money from my only company, it will be taxed in my hands. Okay, the entire value of the tickets will be taxed. Okay, now let's study in detail motor car. Okay, एक एक करेंगे. मोटर कार इज द बिगेस्ट, बट डोंट वरी, हम लोग धीरे धीरे करेंगे मोटर कार, देखते हैं कैसे. बिफोर वी स्टार्ट विथ मोटर कार, whenever we are studying motor car or whenever we are going to do the sums of motor car, we are going to particularly see 4 questions. Four questions we are going to ask. Okay, let's start. First one, who owns the motor car? Is it the employer or the employee? Next is who's maintaining the car? Maintained by whom? The employer or employee. So what do I mean by maintenance? पेट्रोल कौन भर रहा है, गैस कौन भर रहा है, उसका सर्विसिंग कौन कर रहा है. ओके, ना ऑल दिस एक्सेट्रा. तुम अगर गाड़ी लोगे तो उसका ये सब, यू कैन नॉट हैव अ फरारी एंड देन से अरे पेट्रोल बहुत महंगा है. ओके, सो you will have to have a car and you will have to even maintain the car, then only you can run the car. Okay, so your first question will be कार किसकी है. हो सकता है कार इज ऑफ द एम्प्लॉई, इट्स मेरी कार है और कंपनी सिर्फ मुझे है ना मेंटेनेंस का खर्चा दे रही है. सो इट इज गिविंग मी. सो लेट्स टेक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. कार ओन्ड बाय, फर्स्ट वन लेट्स टेक एम्प्लॉयर, बॉस की कार है एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर. ओके, और वो ही मेंटेन कर रहा है. हो सकता है, यस मैम. ओके, नेक्स्ट वन, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. कार दी थी एक बार स्टार्टिंग में, टाटा यही करती है. एक बार तुम मैनेजर या वो लेवल पे आ जाते हो ना, सबको एक एक कार देती है टाटा मोटर्स. ओके, एंड देन इट सेज खर्चा तुम्हारा पेट्रोल के लिए, वो तुम्हारे को पेट्रोल नहीं भर के देंगे हर टाइम.
Okay, so it is maintained by employee. Next one, this could be one possibility, this could be another one. Third one, car is owned by employee. मतलब गाड़ी मेरी है, खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। ओके, हो सकता है। एंड फोर्थ वाला देखो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई। गाड़ी किसकी है? मेरी। खर्चा कौन दे रहा है? मैं। तो वोंट इट स्ट्राइक यू दैट मैम, अगर आपकी गाड़ी है और आप ही खर्चा भर रहे हो तो परक्विजिट कैसे हुआ? बेनिफिट कैसे हुआ? बेनिफिट कब होता है? जब गाड़ी मेरी है और खर्चा कोई और दे रहा है, उस पेट्रोल कोई और भर रहा है, उसका सर्विसिंग का कॉस्ट कोई और भर रहा है, तो बेनिफिट हुआ। हाँ देखो, मेरी गाड़ी है, कोई और करके दे रहा है, बट गाड़ी भी मेरी है और मेंटेनेंस भी मेरा, तो इसमें बेनिफिट हुआ क्या? नहीं। सो इन दैट केस can I say this is not at all a perquisite? So please, we will not even talk about it. Correct? So only these three permutations, combinations can work. Car is owned by employer and even maintained by employer. गाड़ी भी उसकी, खर्चा भी उसका, मैं सिर्फ enjoy कर रही हूँ. Okay? Next one is गाड़ी बॉस की. ओके, खर्चा मैं दे रही हूँ, मतलब एक बार गाड़ी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी दे दी मुझे, अब मैं घूम रही हूँ गाड़ी में. Okay, next one is car is owned by employee, okay, but maintained by employer. So it is owned by employee. मतलब मेरी गाड़ी है, खर्चा सिर्फ बॉस दे रहा. Okay, so now these three permutation combination we will study in detail. Only these three. Okay, now उसमें हमने क्या देख लिया? First two we have seen owned and maintained. इसके बाद वी विल सी, एक बार गाड़ी मिल गई और उसका खर्चा भी मिल गया, डिपेंडिंग कौन क्या कर रहा है, वी विल हैव टू आस्क अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग द कार? इज इट फॉर पर्सनल यूज? इज द कार टेकन फॉर पर्सनल यूज और इट इज टेकन फॉर ऑफिशियल यूज? सो मैम आप लिखना भूल गए ऑफिशियल यूज. ओके फाइन. अगर ऑफिशियल यूज है तो तुम्हारे लिए बेनिफिट क्या हुआ? तुम अपने लिए थोड़ी इंजॉय कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? बॉस का काम कर रहे हो. ऑफिशियल यूज तो वही हुआ ना. सो इफ इट इज ऑफिशियल यूज, इज इट अ परक्विजिट? इज इट अ बेनिफिट? इफ यू हैव बीन गिवन अ कार ओनली टू फ्रॉम ऑफिस, यू हैव टू अटेंड मीटिंग्स. एक बार मीटिंग अटेंड कर लिया तो जाओ वापस लोकल में घर. इनसे नहीं यार, ये बेनिफिट क्या हुआ? ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ बेनिफिट, दिस इज ओनली फॉर ऑफिशियल यूज. कहीं मीटिंग में जाना है तो गाड़ी निकालो. ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट. दैट केस ऑफिशियल यूज तो इज नॉट अ परक्विजिट, हेंस आई एम नॉट पुटिंग इट हियर. फेयर? So we are concerned only with personal use, because if I am enjoying the car, I am going out on drives, I am going out for picnics, for vacations, for holidays, then yes, it is a benefit for me. Similarly, I am using it. मीटिंग में जाना है तो भी वही कार यूज कर रहे हैं, घूमने जाना है तो भी वो कार यूज कर रहे हैं, तो पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज. करेक्ट? in both the cases it is a perquisite. Okay, now obviously you will say depending on which car the value will depend. If it is a small car, what is the meaning of small car? A 2-seater Ferrari is a small car, Innova is a big car, but Ferrari is more expensive, na? So obviously it is not on the size of the car. When I say big and small, it is on the size of the engine capacity. So they are saying a small car is a car which has a engine capacity of 1.6 liters or less, and a big car is a car which has a engine capacity of 1.6 liters and more. So don't go on the size of the car for obvious reasons. Okay, again, so what are we going to see? कार किसकी है, खर्चा किसका है, किस पर्पस से लिया है, किस पर्पस से, what is the use? Is it for personal use or personal and official? And next, the last one, how big or small is the car? Okay, so let's start. So we are seeing motor car.
first owned by employer and maintained by employer. फर्स्ट वाला है ना, हमने ये वाला देखा था, 3 कॉम्प्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, owned by employer, maintained by employer. Then we'll have to see the use. Is it for personal use? मतलब ऑफिस के लिए काम नहीं हो रहा है, ओके तुम घूमने फिरने के लिए यूज कर रहे हो, इट इज फॉर पर्सनल, या तो फिर ऑफिस का भी काम इससे करो, ऑफिस भी इससे आया करो, मीटिंग्स में भी इसमें जाया करो, प्लस घूमने भी यही कार यूज करो, सो इट इज बेसिकली योर कार. दैट केस दे आर सेइंग इफ इट इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, sorry, first let's say personal use. Now if it is owned by employer, you will simply take तुमको कार दे दी है, तुम यूज कर रहे हो, कार की वैल्यू क्या होगी, 10% कॉस्ट ऑफ एसेट, ओके, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार की वैल्यू, ओके, क्योंकि तुमको दी है. Maintained by employer, if it is maintained by employer, you will have to add the maintenance charges, so it will be actual maintenance charges, जो भी उसने पे किया है तुम्हारे लिए तो बेनिफिट है, ओके. प्लस अगर ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर सैलरी विल ऑल्सो बी एडेड एज अ परक्विजिट. सिंपल 10% कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड ड्राइवर सैलरी. कॉस्ट ऑफ 10% कॉस्ट ऑफ एसेट, क्यों, क्योंकि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार की वैल्यू, ओके, तुमको दी है ना कार, तो कार दी है यूज करने के लिए, बट गाड़ी किसकी है, बॉस की है, तो वैल्यू क्या है, वो एसेट का 10% कॉस्ट ऑफ एसेट. यू आर इंजॉइंग द एसेट, तो एटलीस्ट पे 10% ऑफ द वैल्यू, ओके. और अगर खर्चा दे रहा है तो तुमको एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेने पड़ेंगे. Now, next one is owned. Okay, personal and official purpose. Now, if it is personal and official purpose, that means ऑफिस का भी काम इससे हो रहा है, खुद का भी काम इससे हो रहा है, तो अब थोड़ी इनकम टैक्स अथॉरिटीज देखने जाएगा ज़्यादा क्या है, ज़्यादा पर्सनल यूज़ हो रहा है कि ज़्यादा ऑफिशियल, ज़्यादा मीटिंग्स में जा रहा है कि ज़्यादा घूमने, ये सब कोई देखने नहीं आने वाला है. सिंपली देखेगा, अच्छा पर्सनल एंड ऑफिशियल, सिंपल, तो छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी दी है, ओके, स्मॉल कार और बिग कार. स्मॉल कार दिया है तो डायरेक्टली यू विल टेक 1800 पर मंथ, ओके. और अगर बिग कार दिया है तो 2400 पर मंथ विल बी एडेड टू योर सैलरी. 1800 एंड 2400 विल बी एडेड टू योर सैलरी. प्लस दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, कार का चार्जेस, एक्सपेंसेस, एवरीथिंग पूरा, ओके. एंड इफ ड्राइवर इज ऑल्सो गिवन, अब ड्राइवर ऑफिशियल काम भी कर रहा है, तो ऑफिशियल काम तो इज नॉट अ परक्विजिट, ओके. अगर ड्राइवर सैलरी है तो यू विल एड 900 per month as if a driver is also given, okay, and you are enjoying that, so 900 per month will be added as driver's salary, okay. आराम से इतना देखो बस, okay. We are going to do 3 parts, correct? Owned by employer, maintained by employer अभी किया है हमने, आराम से ये देखो. Now let's see the next one. नाउ गाड़ी क्या है, बॉस की है, ओके, तुम बिंदास यूज कर रहे हो, और द बॉस इज नॉट कमिंग एंड सेइंग हाउ मच पेट्रोल इज टू बी पुट, मेंटेनेंस एक्सेट्रा. इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट इट इज यूज्ड बाय यू, ओके, एंड देयर इज नो मेंटेनेंस चार्जेस दैट इज पेड. मेंटेनेंस चार्जेस यू हैव टू पे, जितना घूमोगे उतना पेट्रोल डालो, ओके, जैसा यूज करे उतना सर्विसिंग मेंटेनेंस करो, ओके. सो इन दिस केस owned by employer and it is maintained by employee. Again you are going to see
whether it is used for personal purpose and personal and official. ओके, पर्सनल पर्पस के लिए है तो अब तुम बताओ क्या होगा. गाड़ी तो है ना, अगर गाड़ी है 10% कॉस्ट ऑफ एसेट, सेम चीज. ना ऑब्वियसली इफ इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई, तुम ही मेंटेन कर रहे हो, तुम ही पेट्रोल डाल रहे हो, तो कैन यू से एक्चुअल मेंटेनेंस चार्जेस विल बी एडेड? व्हाई विल इट बी एडेड? इट वोंट बी एडेड, है ना. इट विल बी एडेड हियर इन दिस केस व्हेन द मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट हुआ. इन दिस केस तो तुम ही भर रहे हो, एम्प्लॉय ही भर रहा है, तो वो नहीं आएगा. ओके, लेकिन अगर ड्राइवर सैलरी तुमको वो दे रहा, अगर वो ड्राइवर का सैलरी पे कर रहा है, ड्राइवर सैलरी इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, देन यस यू कैन एड इट. ओके, देन इट हैज टू बी एडेड. अदरवाइज नहीं पे कर रहा है ड्राइवर तो ठीक है, सिर्फ 10% कॉस्ट ऑफ एसेट पे एंड हो जाएगा. अंडरस्टूड? इजी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Now we are talking about personal and official. Again you will see small car, big car. Okay, now see here, यहाँ तुमको क्या हो रहा है, सिर्फ गाड़ी मिल रही है, खर्चा नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 1800 पर मंथ नहीं आएगा, इससे कम आएगा. ओके, इट विल बी 600 पर मंथ. और यहाँ तुमको गाड़ी और खर्चा मिल रहा था, यहाँ सिर्फ गाड़ी मिल रही है, सो इट विल बी 900. ओके, एंड इफ ड्राइवर इज ऑल्सो गिवन, if driver is provided, then it will be 900 will be added. Okay, आराम से ये देखो. The last one, the car is mine, मेरी गाड़ी है, owned by employee. यहाँ क्या हो रहा है, maintained by employer. Okay, same thing you will see. Personal, owned by employee, तो obviously it will not be 10% cost of asset क्योंकि मेरी गाड़ी है. तो हम क्या करेंगे, actual maintenance charges. फेयर. और अगर ड्राइवर दिया है, तो एक्चुअल ड्राइवर सैलरी. If it is personal and official, so you will check small car, big car. Okay, small car है तो actual expenses incurred minus 600 actual expenses minus 600. यहाँ क्या हो जाएगा, बिग कार के लिए एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस 900 पर मंथ. यहाँ क्या हो रहा है, फ्लैट अमाउंट्स नहीं है. सो इफ माई एक्चुअल एक्सपेंसेस इज 1600 पर मंथ, ओके, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड आई हैव अ स्मॉल कार, 600 मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी का 1000 रुपया विल बी एडेड एज अ परक्विजिट फॉर मी.
बिकॉज इट इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर आई विल टेक द एक्चुअल एक्सपेंसेस. हम क्या लेते हैं, अगर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है हम एक्चुअल एक्सपेंसेस लेंगे, बट बिकॉज इट इज पर्सनल एंड ऑफिशियल आई विल गेट दिस 600 एंड 900 का थोड़ा डिडक्शन मिल जाएगा. देखो यहाँ भी 600 900 था, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉई में, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. ओके 600 900 सेम थिंग आई विल गेट ईयर, बट यहाँ मुझे 600 900 ही ऐड करना था. यहाँ जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसमें से 600 लेस हो जाएगा, विच इज बैरली एनीथिंग. एक बार पेट्रोल भरने जाओ, फुल टैंक इज अराउंड 3,500. ओके तो उसमें से 600 रुपया कम हो जाएगा. 3,600 का पेट्रोल भरोगे तो 600 रुपया कम हो जाएगा. बाकी 3,000 रुपये तुम्हारे सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट. ओके नाउ यू हैव द होल चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. एक बार आराम से देखो. वी फिनिश दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर परक्विजिट. और अगर ये हो गया ना, योर चैप्टर इज ओवर ऑलमोस्ट. बाकी एवरीथिंग इज वेरी बेबी इन दिस होल चैप्टर. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ये कार हो गया. Specified employee. For specified employee, a motor car is going to be taxed as a perquisite. If it is not a specified employee, it won't be taxed. What if there are two cars given to a specified employee? So, more than one car. More than one car is given to the specified employee. If more than one car is given to specified employee, or specified employee cannot say both are for personal and official purpose and say 2,400 add करेगा, नहीं चलेगा. Okay, in that case they are saying only one car can be taken as personal and official purpose. Other car or cars have to be taken as for personal purpose only. So that means अगर मुझे दो cars मिली है, दोनों Mercs है, okay, one car and both employer is only paying the maintenance, employer is only, it is owned by the employer. So if each car is let's say for 50 lakhs, okay, 50 lakhs की दो कार मुझे मिली है. So one car I can say it is a big car, 2,400 into 12 because it is personal official purpose. The second car cannot be, okay, I've got two cars, the value of each car is 50 lakhs. The second car cannot be for 2,400 per month. I will have to remove 10% cost of asset. That means 5 lakhs will be added, okay, plus the expenditure, the actual expenses that has been incurred. Understood? तो ये दोनों मिला के, okay, जो amount आएगा, that will be the value of the motor cars which will be added as a perquisite in my salary. Got it? Now ये हो गया motor cars. So I am assuming everyone is clear with motor cars. Next we are doing how to find gas, electricity, water, facility provided. तुमको क्या किया है? फैसिलिटी प्रोवाइड किया है. इफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, ऑल यू हैव टू सी इज एम्प्लॉयर इज मैन्युफैक्चरिंग. आर यू वर्किंग इन भारत गैस? आर यू वर्किंग इन टाटा इलेक्ट्रिसिटी और रिलायंस और अडानी इलेक्ट्रिसिटी? ओके, क्या तुमको फ्री में फैसिलिटी मिल रही है? तो इन दैट केस द एम्प्लॉयर इज मैन्युफैक्चरिंग. और यू विल सी इफ एम्प्लॉयर in that case is not manufacturing, that means he is not the manufacturer, he is also procuring it from somewhere and then giving it to you. If employer is the manufacturer, you will take cost per unit, cost price into number of units जो तुम्हारे लिए उसमें पे किया है. ओके, क्या है वो कॉस्ट? कॉस्ट पे तुमको वैल्यू ऐड हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिकॉज कॉस्ट उसका सपोज 500 रुपीज़ है, वो बेच रहा 800 रुपये में, तो तुमको सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना है.
But if it is he is not the manufacturer, then actual expenses incurred by employer. Okay. This will remember it is at cost. When it will be at cost? When the employer is manufacturing. Okay. Next. Sweeper, helper, gardener. Okay, that will be actual expenses incurred by employer for specified employee. अगर specified employee नहीं है और उसको स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन ये सारे सर्विसेज मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी टैक्स, कोई भी वैल्यू उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है और उसको ये सब चीज़ें मिल रही है तो ऑब्वियसली उसको ऐड करना ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, एजुकेशन फैसिलिटी. हमने देखा ऊपर एजुकेशन फैसिलिटी. स्कूल किसकी है? एम्प्लॉयर की है. लेट्स से फैसिलिटी owned by employer. Facility is not owned by employer. So in this case you will see दोनों केसेस में फैसिलिटी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फैसिलिटी नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. इफ expense, so if fees taken from others, है ना. in this case it will be fees taken from others. in this case it will be what? expense incurred is more than 1000. if it is more than 1000 then whole amount is taxable. पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब अगर 2000 रुपये भरे, पूरा 2000 तुमको तुम्हारे वैल्यू में ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट. तुमको पूरा बेनिफिट जो तुमको मिल रहा है पूरा ऐड हो जाएगा. अगर 1200 रुपये फीस है, ओके, और 1200 रुपये फीस है, तुम स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो तो पूरा 1200 रुपया ऐड हो जाएगा एज अ परक्विजिट. लेकिन अगर फीस सिर्फ 800 रुपये है, कोई बात नहीं, इवन दो यूर अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई इट विल नॉट बी टैक्स्ड. ओके, इट शुड बी मोर देन 1000 रुपीज. इट शुड बी मोर देन 1000 रुपीज. Sure. Now the last one in this case, okay, any transport facility provided by transport undertaking. Now understand, this is not motor car. तुमको क्या बोल रहे हैं? मुझे जाना है, I want to go to Goa and I am working with Red Bus. Red Bus says ये लो टिकट, जाओ, okay, घूम के आओ. Transport facility provided by transport undertaking. Then in that case the fare taken from, what is the benefit? Fare taken from other passengers will be the perquisite or benefit. Transport facility provided by transport undertaking. Fare taken from other passengers. Now please remember this.
there is an exception. This is not applicable to railway and airway employees. तो बहुत बार ये जो एयरप्लेन के पायलट्स रहते हैं, ओके, दे और रेलवे के टीसीज रहते हैं, उनको टिकट्स मिलती है टू ट्रैवल. That will not come as a perquisite for them. There is an exception given. But if you are working in the bus or any other industry, okay, then in that case, whatever fare is taken from other passengers and you are getting it for free, in that case it will become your perquisite. It will become your perquisite. Okay. Okay, we have covered all the perquisites. Today we studied perquisites for specified employee. ये जो आज हमने किया है वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होगा, दूसरे एम्प्लॉयज़ के हाथ में टैक्स होगा ही नहीं. तो तुम्हारे क्वेश्चन में है ना, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है, दिल से मिस्टर एक्स इज has received a motor car from the employer. Value of the motor car is 10 lakhs. Expenses are paid by the employer and it is used for personal purpose. You will simply say what is the taxable value. You will say nil. क्यों नील? क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, तो तुम अज्यूम मत करो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है. अगर बोला है स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है तो ही तुम जाके फिर ये कैलकुलेट करोगे और फिर उसका वैल्यू डिटरमाइन करोगे. सो दे विल नॉट डायरेक्टली टेल यू इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. दे विल से मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मिस्टर एक्स इज अर्निंग his basic salary is 5 lakhs और his basic salary is 2 lakhs. 50,000 से ऊपर होना चाहिए ना उसकी सैलरी. So his total salary is 1,70,000. That case, then yes, he will become a specified employee and then you will find the value. Otherwise, simply write what is the taxable value? 0. Okay? आज हमने गैस, इलेक्ट्रिसिटी सब then education facility, everything we have done. We have completed specified employee, we have completed perquisites as a chapter, okay, as a part of the chapter. Now the last part, okay, that we have to do, ma'am, the next part that we have to do is everything in relation to retirement. तो जब बंदा रिटायर होता है उसको ग्रेट्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, पीएफ, प्रोविडेंट फंड दैट इज, ओके, कभी कभी उसको निकाल देते हैं तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, पेंशन, पीएफ, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन स्कीम के अंदर. वॉलेंट्री रिटायरमेंट, बीआरएस सुना होगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन. Okay, we have to do these 6. Now you all want me to start today? चलेगा? yes. Okay, great.